Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will start a new poem from your English literature book. The name of a poem is From a Railway Carriage, and the poet is Robert Louis Stevenson. Now, what is the meaning of carriage? कैरेज मीन्स जो रेल के जो डिब्बे होते हैं, जो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, उनको आप कैरेज कहते हैं. The title From a Railway Carriage captures the essence of the poem as it is the record of poet's journey in train. The poem communicates the poet's observation and thoughts as he was sitting in a railway carriage. That means यहाँ पे जो पोएट हैं वो ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन के किसी डिब्बे में बैठे हैं एंड वो डिस्क्राइब कर रहे हैं जो जो चीज़ें वो ट्रेन के बाहर देख रहे हैं. जब ट्रेन चलती है देन आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं. सो यहाँ पे पोएट भी बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड देन वही सारी चीज़ों को वो पोएम लिख के डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द राइटर R.L. Stevenson. R.L. Stevenson was born in 1850 and he died in 1894. Was a Scottish novelist, poet, essayist, musician and travel writer. He is most famous for his stories of adventure like Treasure Island, Kidnapped, and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and his children's poetry collected in a child's garden of verses. Now, moving to our poem. First, I will read the whole poem and then I will explain you line by line. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows the horses and cattle, all of the sides of hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a trap who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, there is a river, each a glimpse and gone for ever. And the poet is R.L. Stevenson. We all love traveling, isn't it? Traveling experiences are a great source of great happiness for children. In our childhood days, we all had a fascination towards traveling in train because of its length, the sound produced by the mechanical movements of the wheels, the loud horn, etc. So, जब हम छोटे थे हमें ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था. मे बी शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो ट्रेन्स होती थी वो बहुत लंबी होती थी, उनके जो डिब्बे होते हैं वो बहुत होते हैं, बहुत लंबी ट्रेन्स होती हैं एंड जो उसके व्हील्स होते हैं उनके जो मूवमेंट होते हैं उनको देख के हम बहुत फैसिनेट होते थे कि हम ट्रेन में ट्रैवल करें. ट्रेन की एक डिफरेंट हॉर्न होती है. सो ये सारी चीज़ें हम लोग को एक हैप्पीनेस देती थी. इनफैक्ट अभी भी जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं देन हमें बहुत खुशी मिलती है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टू लाइन्स. फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, hedges and ditches. So, in these lines, the poet describes the sights that he notices while traveling in the train. The train is moving faster than ferries and witches. That means यहाँ पे जो पोएट हैं वो जो जो चीज़ें देख रहे हैं बाहर उनको बता रहे हैं कि ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही है, जो स्पीड है ट्रेन की वो बहुत तेज़ है
और ऐसा लग रहा है कि ट्रेन परियों से भी ज़्यादा तेज़ चल रही है एंड जो चुड़ैल होती हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़ चल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे फेरीज का मतलब है परियां, विचेस का मतलब है चुड़ैलें, ब्रिजेस यू ऑल नो पुल, हाउसेस मीन्स घर एंड hedges means small bushes and ditches means hole। जो होल होते हैं ग्राउंड में उनको ditches कहते हैं या फिर आप इन्हें खाई भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है और ऐसा लग रहा है मीन्स यहाँ पे जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं ट्रेन की स्पीड को परियों से एंड चुड़ैलों से, कि जो ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि परियों और चुड़ैलों से भी ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ते चली जा रही है। ट्रेन की तेज़ गति से ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही है कि हम ब्रिजेस देख पा रहे हैं, पुल देख पा रहे हैं, मकान देख पा रहे हैं, देन यहाँ पे जो बाढ़ है उसे देख पा रहे हैं, खाई देख पा रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से दिखाई दे रही है और जल्दी से चली जा रही हैं बिकॉज जो स्पीड है ट्रेन की बहुत फास्ट है। आपने भी नोटिस किया होगा जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं देन आप जब विंडो के बाहर देखते हैं देन आपने जैसे ही कुछ देखा उसके फिर अचानक से कुछ और चीज़ें दिखाई देने लगती है क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। एक ही नज़र में कभी आपको ब्रिजेस दिखेगा, कभी हाउसेस दिखेगा, हेजेस दिखाई देंगे, डिचेस दिखाई देंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, एंड चार्जिंग along like troops in a battle all through the meadows the horses and cattle। in these lines the train rushes forward like soldiers who are attacking their enemies in the battlefield। The speedy movement of the train leaves behind bridges, houses, ditches behind, and it also leaves behind the green field where horses and cattle are grazing। That means यहाँ पे जो ट्रेन है वो जो मूव कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध के मैदान में जब अपने दुश्मनों से जब आप हमला करते हो, मीन जो सैनिक होते हैं वो जब अपने दुश्मनों से लड़ाई करने जाते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं बिकॉज जब आप आक्रमण करते हैं बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाते हैं और अपने दुश्मनों को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ट्रेन को भी कंपेयर किया गया है सैनिक से, मीन्स यहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आप लड़ाई करने जाते हो, युद्ध करने जाते हो, जो सैनिक होते हैं जिस तरीके से आक्रमण करते हैं, जिस तेज़ी से आगे बढ़ते हैं अपने शत्रु को मारने के लिए, उसी तेज़ी से ट्रेन भी आगे बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा तेज़ है, सैनिकों से भी ज़्यादा तेज़ है। यह उन हरे खेतों को छोड़ देती है जहाँ घोड़े और कैटल चरते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो पोएट है वो एक फील्ड देख रहे हैं, एक ढेर सारी फील्ड देख रहे हैं जिसमें ग्रासेस लगे हैं एंड वो देख रहे हैं कि कैटल एंड जो हॉर्सेस हैं वो चर रहे हैं, मीन्स उसे खा रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं देन डिफरेंट एनिमल्स दिखते हैं, आपको ग्राउंड में दिखते हैं, खेतों में दिखते हैं, खाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से पोएट भी जब विंडोज़ के बाहर देख रहे हैं, ट्रेन के बाहर देख रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि कैटल हैं, हॉर्सेस हैं जो घासें चर रहे हैं। And here the meaning of troops is given in third line, and charging along like troops in a battle। and charging means to rush forward, जो तेज़ी से आगे बढ़ना, जिसका मतलब होता है charging। and troops means a large number of people, or you can say a large number of soldiers। and meadows means a field of grass, which is given in fourth line। Now let's see the next line। all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain। Here
The meaning of driving rain means rain that falls very hard and fast. That means ऐसी बारिश जो जब गिरती है बहुत हार्ड रहती है एंड बहुत फास्ट रहती है. That means बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है. So in this line the poet says that all of the scenes of the hill and the plain were being crossed by the train as quick as one drop of rain falling the other in a storm. That means यहाँ पे जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं स्पीड की ट्रेन से. जो स्पीड है ट्रेन की उसको कंपेयर कर रहे हैं बारिश की बूंदों से. That means यहाँ पे द पोएट इज सेइंग दैट पहाड़ी और मैदान, हिल को आप पहाड़ी कहते हैं एंड प्लेन मीन्स मैदान. सो यहाँ पे पहाड़ी और मैदान के सभी दृश्यों को ट्रेन द्वारा जल्दी से जल्दी पार किया जा रहा है, जैसे कि एक तूफान में एक के बाद एक आने वाली बारिश की बूंदें. सो यहाँ पे जो पोएट हैं वो खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर देख रहे हैं कि उन्हें पहाड़ी दिखाई दे रही है एंड मैदान भी दिखाई दे रहे हैं. बट वो जब दिखाई दे रहे हैं फिर अचानक बहुत जल्दी से कुछ और चीज़ें दिखाई देने लग रही हैं. मीन्स आप एक बार देखते हो फिर वो चीज़ें बहुत जल्दी चली जाती हैं. सो यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी चली जा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे तूफ़ान के बाद जो बारिश आती है, एक बारिश हुई, एक ड्रॉप हुआ बारिश का, फिर जो दूसरा ड्रॉप हुआ, फिर लगातार बारिश होती रहती है कि आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितनी बार कितने ड्रॉप्स हुए हैं. सो यही चीज़ पोएट भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब वो बैठे हैं विंडो के पास, जो सीन्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत जल्दी से दिखाई दे रहे हैं एंड देन फिर वो जल्दी से चले जा रहे हैं. नाउ सी द नेक्स्ट टू लाइन्स. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई painted stations whistle by. Here wink means to close and open your eyes quickly. Wink का मतलब होता है जब आप अपनी आँखों से जल्दी से आपने आँखें अपनी बंद की एंड जल्दी से उसे ओपन किया. सो वो क्या होता है? विंक. बहुत क्विकली जब आप अपनी आँखों को बंद करते हैं, खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विंक ऑफ एन आई. सो इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट in the next moment the train passes railway station and it looks like the painted stations. That means अगले ही क्षण में ट्रेन रेलवे स्टेशन से गुजरती है और यह पेंटेड स्टेशन की तरह दिखती है. बिकॉज जब आपने भी नोटिस किया होगा जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं देन स्टेशंस डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट स्टेशंस आते हैं. सो स्टेशंस दिखेंगे एंड देन वो जल्दी से चले जाएंगे. सो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है एंड देन वो चली जा रही है. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. हियर इज अ चाइल्ड हु clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. So here the meaning of clambers means climb up, means यहाँ पे ऊपर चढ़ना, climb करने का मतलब होता है clambers, and scrambles means बहुत डिफ़िकल्टी के साथ बहुत अजीब तरीके से चढ़ना. So here in these lines the poet sees a child climbing a step ground and collecting berries during climbing. That means यहाँ पे पोएट नोटिस कर रहे हैं, मीन्स अपने विंडो के बाहर देख रहे हैं, ट्रेन के बाहर देख रहे हैं कि एक बच्चा है छोटा जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड वो चढ़ भी रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ चढ़ रहा है, देन गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है एंड जो बेरीज होते हैं उसे इकट्ठा कर रहा है, मीन्स जो जामुन होते हैं. सो वो उसे इकट्ठे करते हुए उसे कलेक्ट कर रहा है. सो इन दिस लाइन पोएट एक बच्चे को देखता है जो अजीब तरीके से चढ़ाई करके जामुन इकट्ठा कर रहा है. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. हियर इज अ ट्रैप हु स्टैंड्स एंड गेजेस एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज. सो यहाँ पे डेजीज एक वाइट फ्लावर्स होते हैं जो फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं, जंगल में ही ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो वाइट कलर के होते हैं. आपने भी देखा होगा डेजीज. सो
In these lines, the poet also sees a homeless person who looks at the train with amazement. As the train moves forward, he sees some ladies in a common village making garlands with daisy flowers. That means यहाँ पे पोएट विंडो के बाहर, ट्रेन के बाहर देखते हैं कि एक भिखारी है, यहाँ पे एक मीन्स एक होमलेस पर्सन है, एक भिखारी व्यक्ति है जो कि ट्रेन को देख रहा है, बहुत अजीब तरीके से देख रहा है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, पोएट एक आम गांव देखते हैं, मीन्स एक नॉर्मल सा गांव देखते हैं। एंड वो देखते हैं कि गांव में एक मैदान है जहाँ पे कुछ महिलाएं डेजी फ्लावर्स से माला बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। Now see the next line. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. So in these lines, the poet then sees a cart moving slowly in the highway. It was full of load and the cart driver was sitting on the top of the load. So यहाँ पे पोएट एक हाईवे देखते हैं जहाँ पे हाईवे में धीरे धीरे चलती एक गाड़ी दिखती है जो सामान से भरी थी, और जो गाड़ी चलाने वाला था मीन्स गाड़ी चालक है वो अपने सामान के ऊपर बैठा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक कार्ट दिखती है। यू कैन सी अ कार्ट इन अ पिक्चर डिस्प्लेइंग ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे एक कार्ट है, कार्ट पे ढेर सारे सामान रखे हुए हैं एंड जो उसका ड्राइवर है मीन्स जो उसे चला रहा है, जो चालक है, वो उस सामान के ऊपर बैठा है देन अपनी कार्ट को चला रहा है बहुत धीरे धीरे, बिकॉज ऑब्वियसली सामान पीछे रखा है, सो आपकी जो कार्ट है वो धीरे ही चलेगी। सो वो आराम से उसे धीरे धीरे हाईवे पे चला रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर, each a glimpse and gone forever. So in these lines, the poet also gets a glimpse of a mill and a river by its side. All these objects appeared and disappear so quickly. So यहाँ पे पोएट ये भी बता रहे हैं कि पोएट ने बहुत तेज़ी से मीन्स बहुत थोड़ा सा ही देखा, बिकॉज आपने भी देखा होगा जब आप ट्रेन से कोई भी चीज़ें देखते हैं देन बहुत अच्छे से आप नहीं देख पाते हो, बस आपने देखा है देन वो चीज़ें चली जाती हैं क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, जो स्पीड होती है वो ट्रेन की बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। सो आप कोई भी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं देख पाते हैं। देन यहाँ पे जो पोएट हैं वो एक मिल भी देखते हैं, रिवर भी देखते हैं, एंड जो चीज़ें वो देख रहे हैं वो बहुत जल्दी से दिखाई दे रही हैं एंड बहुत जल्दी से गायब हो जा रही है, बहुत क्विकली गायब हो जा रही हैं। सो यहाँ पे पोएट को एक चक्की दिखती है, मिल का मतलब होता है एक चक्की, एंड एक नदी दिखती है जिसकी झलक पोएट को बस दिखती है एंड देन उसकी जो झलक है वो बहुत जल्दी से वापस चली जाती है। ये सभी वस्तुएं इतनी तेज़ी से दिखी और गायब भी हो गई। So students, we have completed the explanation of poem from a railway carriage. So this poem tells about the journey of poet traveling in a train. That means ये जो poem है ये describe करती है journey के बारे में। यहाँ पे journey कौन कर रहा है? poet journey कर रहे हैं। poet ट्रेन से journey कर रहे हैं एंड वो क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रेन में, वो सारी चीज़ें वो इस पोएम से बता रहे हैं, अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड पोएट यहाँ कहाँ बैठे हैं? वो ट्रेन के किसी डिब्बे में बैठे हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने देखी ट्रेन के बाहर वो सारी चीज़ें पोएट ने इस पोएम के थ्रू आपको एक्सप्रेस करके बताया है। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क फॉर टुडे इज़ टू डू द क्वेश्चन आंसर्स of this poem in your rough copy, and don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you students. Have a nice day.